Hello, children. Good morning. Let's learn Kartus today. It is one of your lessons in Sparsh, and we'll begin with Path Pravesh. All right. अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे. द ब्रिटिशर्स हैड कम टू आवर कंट्री पोजिंग एज ट्रेडर्स. शुरू में व्यापार ही करते रहे. इनिशियली दे वर ट्रेडिंग, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे. बट दे डिडंट रियली हैव इंटेंशन जस्ट टू ट्रेड. धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया. रियासत आर दी स्मॉल स्मॉल किंगडम्स. So slowly over the time, East India Company they began to take over these smaller kingdoms. उनकी नियत उजागर होते ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए. नियत इंटेंशन. सो एज सून एज द इंडियंस those who were patriots, as soon as the Indians realized what these British India, East India Company is up to, they started working towards throwing these guys out. प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करना. सो इन द गिवन लेसन वी टॉक अबाउट अ ब्रेव हार्ट. हिज नेम वॉज Wazir Ali. So we talk about him, and his only aim in life was to throw away the Britishers from our country. कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानींद कंपनी के बटालियन के खेमे में ही नहीं पहुंचा. आई विल स्टॉप हियर. So he was so brave that all alone he went into the Britishers camp where there was the whole army was there. He went into the Britishers camp because he needed some kartus, that is bullets, and he went there. He spoke to the colonel, he announced who he was, and he walked out. Okay, and not only that, he also told the colonel that I am leaving you alive, I am letting you live because you have given me these bullets. So, and then he walked out. So the colonel was so taken aback, stunned, and he was also so impressed that when the lieutenant came and asked him, who was it, why did he want to talk to you? He said he was a very brave soldier. Okay, so Wazir Ali was so brave and such a patriot that even the Britishers used to respect him a lot. They of course wanted to kill him, and so that he doesn't pose a threat, but they also respected him that much. Okay. बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे. यू विल नेवर नॉर्मली, यू विल नॉट वांट टू स्पीक हाईली ऑफ योर एनिमी, बट हियर Wazir Ali was such a person that even the Britishers couldn't help but speak highly of him. So let's come to the lesson. Kartus means bullets. So the characters Patra, Colonel, Lieutenant, Sipahi, and Sawar. Sawar is the Ghursavar, Wazir Ali. Horse rider. Avadhi 5 minutes. Zamana, the time, the period. Sun 1799, the year 1799. Samay Ratrika, it was the night time. Sthan, the place where this story happened took place. गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंस के खेमे का अंदरूनी हिस्सा. सो वज़ीर अली along with few of his men was supposed to be roaming around in the jungles of Gorakhpur, which is in Uttar Pradesh. So these guys, Colonel Collins along with his troop, he had set up a camp in the jungle since many weeks now, hoping to catch Wazir Ali. So this play is taking place in the camp, inside the camp. दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं. टू ब्रिटिशर्स आर टॉकिंग. कर्नल कॉलिंस और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं. सो कर्नल कॉलिंस एंड द लेफ्टिनेंट दे आर सिटिंग आउटसाइड द टेंट. कर्नल कॉलिंस टेंट.
चांदनी छिटकी हुई है, इट इज़ अ स्टारलिट नाइट. अंदर लैम्प जल रहा है एंड इनसाइड द टेंट देर इज़ वन लैम्प बर्निंग. कर्नल, जंगल की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है. सो द लाइफ इन अ जंगल इज़ रियली डेंजरस. हाँ. लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए. इट्स बीन वीक सिंस वी हैव सेट अप अ कैंप हियर. सिपाही भी तंग आ गए हैं. इवन द सोल्जर्स आर लाइक सिक एंड टायर्ड. व्हाट इज़ दिस? ये वज़ीर अली आदमी है या भूत? हाथ ही नहीं लगता. अरे दिस वज़ीर अली, वेदर इज़ अ ह्यूमन बींग और वेदर इज़ अ गोस्ट, वी आर नॉट एबल टू कैच हिम एट ऑल. सो कर्नल सेज, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं. सो व्हेन वी हियर हिज स्टोरीज, अफसाने कहानियाँ, स्टोरीज. सो व्हेन वी हियर हिज स्टोरीज वी रिमेंबर व्हाट ऑल रॉबिन हुड डिड. अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफ़रत है. हाउ ही हेट्स द ब्रिटिशर्स. कोई 5 महीने हुकूमत की होगी. ही मस्ट हैव रूल्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 months एट द मोस्ट. मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक क्लीन, प्योर क्लीन, पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया. तकरीबन मीन्स ऑलमोस्ट, कामयाब मीन्स सक्सेसफुल. So in the matter of 5 months he almost succeeded in throwing out the maximum Britishers from his court. Lieutenant, Colonel Collins, ये सादत अली कौन है? Who is the सादत अली? कर्नल, आसिफ उद्दौला का भाई है. So सादत अली is आसिफ उद्दौला's brother. Now आसिफ उद्दौला, because he thought that he will not get a son, so he had adopted Wazir Ali. Okay. So Wazir Ali का और उसका दुश्मन. So Saadat Ali, even though he is Asif Uddaulla's brother, but he became enemy of Wazir Ali and Asif Uddaula. Why? असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़की की कोई उम्मीद नहीं थी. सो नवाब आसिफ उद्दौला डिडंट थिंक दैट ही वुड गेट अ सन. वज़ीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया. सो व्हेन वज़ीर अली वाज बोर्न एंड आसिफ उद्दौला adopted him, then Saadat Ali thought कि this is a death for me, because Saadat Ali thought कि he doesn't have a son, Asif Uddaula, so after Asif Uddaula, I will become the next Nawab. But now he adopted Wazir Ali. So Saadat Ali went against him. Lieutenant, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत थी? So Lieutenant says कि but why did we make Saadat Ali sit on the throne? Where was the opportunity for us that we made Saadat Ali sit on the throne? Saadat Ali, Colonel says, Saadat Ali हमारा दोस्त है. Saadat Ali is our friend. और बहुत ऐश पसंद आदमी है. He loves to live in luxury. इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत इस प्रॉपर्टी, दैट्स वाई ही हैज़ गिवन अस हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी, दे दी. और 10 लाख रुपये नगद इज कैश, एंड ही ऑल्सो गेव अस 10 lakh rupees cash. So Saadat Ali, once he became the Nawab, he gave half of his kingdom to them and plus 10 lakh rupees cash. अब वो भी मज़े करता है और हम भी. So now he is also enjoying with the remaining property and we are also enjoying. Lieutenant, सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह ज़मा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है. दावत, invitation. So Lieutenant says, I have heard that Wazir Ali is inviting the king of Afghanistan, whose name is Shah Zama, Badshah Shah, to come and attack India. Colonel, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी. सो एक्चुअली टीपू सुल्तान वाज द फर्स्ट वन हु इनवाइटेड द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान टू अटैक इंडिया सो दैट वी कैन थ्रो द ब्रिटिशर्स आउट.
फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी. देन वज़ीर अली ऑल्सो इन्वाइटेड हिम एंड देन शमसुद्दौला ऑल्सो इन्वाइटेड हिम. कौन शमसुद्दौला? अरे हु इज़ नाउ दिस शमसुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती भाई. सो शमसुद्दौला इज़ द brother, like not own brother, a cousin of the Nawab of Bengal. बहुत ही खतरनाक आदमी है. ही इज़ अ वेरी डेंजरस गाय अगेन. लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है. ओ, इट मीन्स दैट द होल ऑफ इंडिया, you know, they want to throw us out. They are totally opposed to the East India Company. कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी. सो if these guys they succeed, then the battle of Buxar, the battle of Plassey, all of them will, give me a moment. All of them won't stand anything, I mean, they will lose their importance. What will happen now? And whatever we could gain through Lord Clive, we will lose everything when now Lord Wellesley, under his leadership, will lose everything. लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है या. ओ, वज़ीर अली इज़ फ्री, इट्स अ डेंजर टू अस. हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए. गिरफ्तार, अरेस्ट, somehow the other we should arrest this guy. कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ. आई एम टेकिंग वन होल आर्मी एंड आई एम रनिंग आफ्टर हिम. और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है. एंड फॉर ईयर्स टुगेदर, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, एज इन कि वी आर नॉट एबल टू कैच हिम. वी फील ही इज़ हियर, ही इज़ देयर, बट वी आर नॉट एबल टू कैच हिम. ही इज़ एबल टू गेट अवे लाइक एन ईल फिश, गेट अवे फ्रॉम अस. और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता. ही इज़ रोमिंग अराउंड इन दीज जंगल्स एंड स्टिल वी आर नॉट एबल टू कैच हिम. उसके साथ चंद जांबाज है. जांबाज आर पीपल, extremely brave people who are ready to die. They are not scared of death, but before they die they want to kill thousands and then die. मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम है. Hardly a handful of men, but they are so strong, they are so brave that they are able to defeat us. We are not able to catch hold of them. लेफ्टिनेंट, सुना है वज़ीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है. जाती तौर, पर्सनली. So I have heard that Wazir Ali, even personally on his own, he's a very brave guy. कर्नल, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता. इफ़ ही वुड नॉट हैव बीन सो ब्रेव, वुड ही हैव डेयर टू मर्डर ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉयर? लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? अरे व्हाट हैज हैपेंड? व्हाट वाज दिस मर्डर ड्यू टू? कर्नल, किस्सा क्या हुआ था? अरे व्हाट स्टोरी. उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया. So after we removed Wazir Ali from his post, we sent him to Banaras and we promised him that we will keep giving him 3 lakhs of rupees annually. कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया. आफ्टर फ्यू मंथ्स गवर्नर जनरल वांटेड टू ट्रांसफ़र हिम टू कैलकटा. वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था कि उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है. So Wazir Ali went to the lawyer who used to live in Banaras only, and he complained कि why is the governor general asking him to go to Calcutta. वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, but the lawyer didn't bother about his complaint. उल्टा उसे बुरा भला कह दिया, and instead he thought he is in he is working for East India Company, so he told all rubbish. He spoke very badly with Wazir Ali.
वजीर अली के दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया. ऑलरेडी वजीर अली used to hate the Britishers. This fellow spoke to him in such a bad manner. So he took a knife. Khanjar is it's a kind of knife with a pointed edge, you know. So with that he just killed him, लेफ्टिनेंट, और भाग गया, एंड ही रन अवे. कर्नल अपने जान निसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया. जान निसार आर पीपल हु आर रेडी टू डाई फॉर यू. So along with his, along with his small troop, he ran away to Azamgarh. आजमगढ़ के हुक्मरान ने हुक्मरान मीन्स द वन हु इज़ रूलिंग आजमगढ़. आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया. सो इन अंडर हिज प्रोटेक्शन द किंग ऑफ आजमगढ़ ही टुक देम अप टिल घाघरा. अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है. नाउ दीज पीपल दे आर रोमिंग अराउंड इन द गोरखपुर जंगल्स फॉर मेनी ईयर. लेफ्टिनेंट मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? बट व्हाट इज इट दैट ही इज एक्चुअली प्लानिंग टू डू? कर्नल स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए. ही इज़ प्लानिंग टू समहाउ रीच नेपाल. अफ़गानी हमले का इंतज़ार करें, एंड ही इज़ वेटिंग फॉर द अफ़गान किंग टू अटैक अस. अपनी ताकत बढ़ाएं, एंड ही इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग हिज आर्मी. सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्ज़ा करे, एंड ही वॉन्ट्स टू रिमूव सादत अली who took his place in अवध, and he wants to gain his kingdom back, और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दिया. and he wants to throw us the Britishers out of India. लेफ्टिनेंट नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो. सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू रीच नेपाल. मुमकिन मीन्स पॉसिबल. इट्स क्वाइट पॉसिबल ही वुड हैव ऑलरेडी रीच नेपाल. कर्नल हमारी फ़ौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं. आवर आर्मी एंड द सोल्जर्स ऑफ नवाब सादत अली खां आर रियली एट द बिहाइंड हिम. हमें अच्छी तरह मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में है. वी नो वेरी वेल ही इज़ स्टिल हाइडिंग इन दीज जंगल्स. एक सिपाही तेज़ी से दाखिल होता है. सडनली अ सोल्जर ही एंटर्स, माने ही रन्स एंड ही कम्स इनटू द कैंप, इनटू द टेंट. कर्नल गिव मी अ मोमेंट. So probably while talking these people, so what has happened is this play is not a complete play, it's an extract. So they have removed certain dialogues in between. That's why it is kind of disconnected, the movement. So probably while talking these people, they got up and they must have gone into the tent. So a soldier, he enters the tent. Colonel उठकर. So Colonel gets up from his chair. क्या बात है? What is it? गोरा. So the soldier is a Britisher. दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है. गर्द, dust. So I can see dust rising from far. It means कि someone is coming in a horse. Someone or some people, a small platoon, they are coming in horses. Colonel सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें. टेल द सोल्जर्स टू बी रेडी. सिपाही सलाम करके चला जाता है. तो सिपाही सल्यूट्स एंड गोज आउट. लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था. मसरूफ़ बिजी. लेफ्टिनेंट वॉज बिजी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो. काफिला, कारवां. द वे द डस्ट इज फ्लाइंग इन द एयर, इट्स एज इफ वन होल कारवां ऑफ पीपल आर कमिंग दिस साइड. मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है. बट आई कैन सी ओनली वन हॉर्स राइडर. कर्नल खिड़की के पास जाकर. द कर्नल ऑल्सो गोज नियर द विंडो. हाँ, एक ही सवारी. या यू आर राइट, देयर इज जस्ट वन हॉर्स राइडर. सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है. ही इज राइडिंग द हॉर्स सो फास्ट. लेफ्टिनेंट
और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है, एंड इट लुक्स एज इफ ही स्ट्रेट कमिंग टू अस ओनली। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है, सो कर्नल क्लैप्स एंड कॉल्स द सोल्जर इनसाइड। कर्नल सिपाही से, ही टेल्स द सिपाही, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे, टेल द सोल्जर्स टू कीप एन आई ऑन दिस हॉर्स राइडर, कि ये किस तरफ जा रहा है, दैट विच साइड इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, सी हिज डायरेक्शन। सिपाही सलाम करके चला जाता है। तो सिपाही अगेन लीव्स। लेफ्टिनेंट, शुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। शुबह, डाउट, so undoubtedly there is no chance, gunjaish, chance, there's no chance that he is going elsewhere, he is definitely coming here. टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सो दिस हॉर्स राइडर, our hero Wazir Ali, he comes till very close to the camp, and then he stops. So you can hear the what is it called again, टाप, घोड़े की टाप, I'm forgetting the word, the trot of the horse, it stops, and then you can hear this fellow coming. सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है, आई वॉन्ट टू मीट कर्नल। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब, अच्छा। सवार बाहर से, सी, वाई सी, whether it was G and it printed error C. गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। सर, हुजूर, सर, सर सवार, द हॉर्स राइडर वांट्स टू मीट यू। कर्नल, भेज दो, सेंड हिम इन। लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली का कोई आदमी होगा, प्रोबेबली ही इज़ सम, वज़ीर अलीज क्लोज पर्सन, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु इज़ एक्चुअली अ फो, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। बिकॉज दिस इज़ हाउ द ब्रिटिशर्स वर एबल टू टेक ओवर लॉट्स ऑफ आर किंगडम्स, बिकॉज द पीपल हु वर एक्चुअली वेरी क्लोज टू द किंग्स, दे यूज टू गिव अवे द सीक्रेट, how to defeat those kings. That is how the Britishers managed to take over almost the whole of India. So again they are expecting कि probably Wazir Ali, some person is coming and he wants to give away Wazir Ali's secret. Colonel, खामोश रहो, just keep quiet. सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। तो the horse rider comes in with the सिपाही, the soldier. सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। सो द हॉर्स राइडर एज सुन एज ही कम्स इन, ही आस्क्स फॉर तन्हाई, एज इन की आई वॉन्ट टू मीट कर्नल ऑल अलोन, द रेस्ट ऑफ यू प्लीज लीव। कर्नल, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। तो गैर is outsider, one who doesn't belong here. Raze dil means raz is a secret, dil is heart. So whatever is there in your heart, you can tell me openly. There is no outsider over here. Sawar, दीवार हमगोश दारद, तन्हाई. So he says दीवारों के भी कान होते हैं. So even the walls have ears. So I want an absolute, absolutely no one around us. कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है. So he signals lieutenant and सिपाही to leave. दोनों बाहर चले जाते हैं. Now the colonel is all alone with our hero. जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, when just these two guys are alone, तो ज़रा वक्फे के बाद after some time चारों तरफ देखकर सवार कहता है, आफ्टर सम टाइम द हॉर्स राइडर लुक्स ऑल अराउंड एंड देन ही सेज, सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? व्हाई हैव यू सेट अप योर कैंप ओवर हियर, इस मुकाम पर, इन दिस प्लेस? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए. सो ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ आस्क्ड मी टू अरेस्ट वज़ीर अली. सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? लाव लश्कर, सच अ बिग आर्मी, बट
Why such a big army, why so many tents and, so much to catch one fellow? Colonel, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, so that they will assist me in arresting. सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब. It's not so easy to arrest वजीर अली सर. कर्नल, क्यों? वो एक जाबाज सिपाही है, because he is a brave soldier. कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है. Yes, I have also heard this. आप क्या चाहते हैं? So what is it that you want? चंद कारतूस. I just want a few bullets. कर्नल, किस लिए? Why do you want the bullets? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए. I want the bullets to arrest वजीर अली. कर्नल, ये लो 10 कारतूस. ओके, टेक दीज 10 बुलेट्स. सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया. सो ही थैंक्स. कर्नल, आपका नाम? व्हाट्स योर नेम? सवार, वजीर अली. आपने मुझे कारतूस दिए, इसके लिए आपकी जान बख्शी करता हूँ. यू गेव मी द बुलेट्स, सो आई एम लीविंग यू अलाइव. ये कहकर बाहर चला जाता है. सो सेइंग दिस ही गोज़ आउट. टापों का शोर सुनाई देता है, एंड ही टेक्स हिज हॉर्स एंड ही लीव्स. कर्नल एक सन्नाटे में. कर्नल इज ज़ैप्ड. हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है. ही इज़ फ्रोजन इन अ प्लेस एंड लेफ्टिनेंट कम्स इन. लेफ्टिनेंट, कौन था? कर्नल दबी ज़बान से अपने आप से कहता है. सो कर्नल स्पीक्स वेरी सॉफ्टली एज इफ इज़ टॉकिंग टू हिज ओन सेल्फ. एक जाबाज सिपाही, a brave heart soldier. So this is about the lesson. I hope you enjoyed it as much as I did. Keep it up.